وہ پاگل ہو گیا اور وہ اس نے سوسائڈ کر لیا. کوئی اس میں خودکشی نہیں لگ رہی, کوئی کسی نے نہیں مارا. اللہ تعالیٰ کی شاید اس میں کوئی بہتری تھی. وہ جب وہ ایرون پیتا ہے نا تو اس کا دم گھٹ سکتا ہے, کنفرم گھٹ سکتا ہے. انسان اس دنیا سے چلا جائے پھر اس کی اگر کوئی غلطیاں بھی ہو تو ان پہ پردہ ڈال دینا چاہیے. شادیاں کرنا گناہ نہیں ہے, وہ جائز ہے اسلام میں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کی دوست ہوسٹ ملائکہ بٹ ہلٹن اور آپ کی جانب سے آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں ایک نئے موضوع کے ساتھ. تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے ناظرین وہ ہے جی عامر لیاقت انتقال کر گئے ہیں. جو ہر طرف سوشل میڈیا پہ خبریں چل رہی ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے, تو وہ بالکل حقیقت ہے. اور اسی متعلق ہم اپنے ناظرین سے بھی گفتگو کریں گے کہ کیا ان کی موت ایک طبی موت تھی یا پھر انہوں نے خودکشی کی یا پھر وہ ڈپریشن کا شکار تھے اور انہوں نے اسی اسٹریس میں آ کے کہا کہ اب مجھے نہیں اور جینا. کیونکہ ظاہری سی بات ہے جو ڈپریشن کا پیشنٹ ہوتا ہے وہ ایک منٹ اس کے لیے بہت اذیت کا گزر رہا ہوتا ہے. تو ناظرین اسی متعلق ہم اپنے تمام ناظرین سے گفتگو کریں گے اور جانیں گے ان کی رائے کہ آخر ان کی موت کے پیچھے کیا وجوہات تھیں, کیا ان کی رائے ہے اس متعلق. تو آج ہے میرے ساتھ, بنا وقت ضائع کیے اب آگے بڑھتے ہیں سب کی طرف اور ان سے جانتے ہیں ان کی رائے. آج ہے میرے ساتھ. نیوز دیکھی ہی ہوگی کہ عامر لیاقت صاحب انتقال کر گئے ہیں اور جس طریقے سے ان کی موت ہوئی وہ بھی بڑی حیران کن ہے کہ وہ اپنے گھر میں ہی انتقال کر گئے. اور جب انہیں ہاسپٹل لے کے گئے ہیں تو ہر وہ ٹریٹمنٹ انہیں دی گئی, کیونکہ اکثر ہوتا ہے نا کہ آپ کا دم گھٹ جاتا ہے, آپ کا ہارٹ تھوڑی دیر کے لیے بند ہو جاتا ہے, لیکن آپ کو جو شاکس دیے جاتے ہیں کرنٹ شاکس, اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان الیکٹرک شاک سے آپ کا کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک دم آپ کا ہارٹ بیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ تمام انہیں ٹریٹمنٹس دی گئیں لیکن اس کے باوجود بھی اینڈ پہ یہی رپورٹ آئی کہ وہ انتقال کریں گے. اس میں حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا؟ وہ تو بالکل ٹھیک تھے اور میں کہتی ہوں کہ دانیہ شاہ سے بھی کہ ریسنٹلی ان کی طلاق ہوئی ہے تو وہ اپنی زندگی میں خوش تھے, ایک عہدہ تھا ان کے پاس MNA کا, اور مجھے نہیں سمجھ آئی. تو آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ میں یہی کہتی ہوں کہ میں اس کے پروگرامز دیکھتی رہی ہوں, جو رمضان پروگرامز تھے اس کے بڑے ایکسیلنٹ پروگرامز چلتے رہے ہیں اور وہ ہر عورت پہ گرتا تھا, خوبصورت عورت پہ. تو وہاں سے کسی نے اس کو جج نہیں کیا, وہ ہمارا عالم دین تھا, اس کو جج کرنا چاہیے تھا کہ ہی از پازیٹیو اور دا نیگیٹو پرسن. تو اس کے اکارڈنگلی پھر اس کو ڈیل کرنا چاہیے تھا, اس کی ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے تھی. اور ایسے ہم اپنے گھر والوں کو بھی اگنور کرتے ہیں, ڈپریشن میں ہوتے ہیں تو اسے کہتے ہیں یہ نخرے کر رہے ہیں یہ. اسی طرح اس کی گریجولی وہ اس سٹیج پہ آ گیا کہ اس نے سوسائڈ کر لیا, یا جو بھی اس کے ساتھ ٹیمپٹیشن اس نے کی وہ تو اللہ جانتا ہے. اچھا, تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ویسے تو پوسٹ مارٹم رپورٹ آنی ہے لیکن ان کے ملازم کا یہ کہنا ہے کہ عامر لیاقت صاحب جو ہیں وہ اپنی یہ ان کی ابھی تو انتقال ان کا آج ہوا ہے لیکن وہ 2 دن پہلے سے ہی اللہ سے معافیاں مانگ رہے تھے, دکھی تھے, بہت روتے تھے. تو اور آج بھی جب ان کی ڈیتھ سے پہلے بھی ان کے ملازم نے کہا کہ ان کے کمرے سے ان کی رونے کی آوازیں آ رہی تھیں کہ وہ اللہ اللہ چیخ رہے تھے, معافیاں مانگ رہے تھے. تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہ ان کے ملازم کا بیان ہے. ہاں جی, ایکچولی نا دوسرے عالم دین تھے, جیسے ہمارا جیسے جنید جمشید کو اس نے ہرٹ کیا تو وہ ایک واقعی عالم دین تھا. شادیاں کرنا گناہ نہیں ہے, وہ جائز ہے اسلام میں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہو تو. اور اس نے پھر مولانا طارق عزیز کو بہت اس نے ہرٹ کیا, تو وہ کنڈیشن اس کی سویئر ڈپریشن کی لگتی تھی جو کہ کسی نے اس کی کیئر نہیں کی, اور مجھے تو اس کا سوسائڈ لگتا ہے ڈیو ٹو ڈپریشن, اور مجھے کچھ نہیں. تو جو انہوں نے اپنی زندگی کا میں کہتی ہوں کہ ایک تماشا ہی کہتے ہیں بنانا, ایک اپنی زندگی کا تماشا بنایا اپنی شادیوں کا. ٹھیک ہے, میں کہتی ہوں کہ وہ ایک پبلک فگر تھے, ایک بڑے مشہور وہ شخص تھے, لیکن انہوں نے اپنے گھر کی تمام باتوں کو اپنی پبلکلی ایکسپوز کرنا شروع کر دیا. تو کیا ان کو اس چیز کا ڈپریشن تھا؟ کس چیز کا آخر ڈپریشن تھا ان کو؟ وہ ایکچولی نا پہلے وہ ایک نارمل فیملی سے تھا, تو وہ کہتے ہیں نا جب اللہ رزق دیتا ہے تو بڑا کچھ ہو جاتا ہے. اس کو ایک سڈنلی جب بہت اماؤنٹ اس کے ہاتھ میں آئی, رزق بلیک, اس کو میں کہتی ہوں بلیک منی, تو وہ پاگل ہو گیا اور وہ اس نے سوسائڈ کر لیا. اور یہ اس کا مرڈر نہیں ہے, یہ اس کا سوسائڈ اٹمپٹیشن ہے, کیونکہ اب اس کے پلے کچھ نہیں رہا. وہ پھر وہی کنگال سٹیج پہ آ گیا جو کبھی کسی دور میں وہ تھا. آج کی تو نیوز سنی ہوگی کہ ہمارے ایک عالم دین عامر لیاقت جو ہیں وہ انتقال کر گئی ہیں, اور ان کی کچھ ناظرین کا تو یہ کہنا ہے کہ وہ ڈپریشن کی وجہ سے انہوں نے سوسائڈ اٹیمپٹ کیا, یا پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کسی طبی حالات کی وجہ سے کوئی فوت ہوئے ہیں, کوئی بیماری تھی انہیں, یا پھر کوئی سوسائڈ اٹیمپٹ انہوں نے کیا؟ آخر کیا راز ہے ان کی انتقال کر جانے کے پیچھے, کیا وجہ ہے؟ ویل آئی ہیو سیم تھاٹس اباؤٹ ہم کہ وہ ڈپریشن میں آ کے ہی مر چکے ہیں, کیونکہ ان کو ملا ہی ایسے جھٹکا لائف میں. کوئی بھی ایسا مطلب صدمہ برداشت نہیں کر پاتا ہے لائف میں. ان کو 3 شادیاں ہوئی تھی, 3rd ون آپ ایسے چھوڑ کے چلے جانا, اٹس ناٹ اے گڈ نیوز فار اینی بڈی, سو دیٹس وائی ہی ڈیڈ. کیا جھٹکے انہیں ملے؟ ہمیں کچھ بریفنگ دو گے آپ کے کیا ذہن میں باتیں چل رہی ہیں؟ ویسے اگر دیکھا جائے اوور آل ان کو تو میرے خیال سے ڈپریشن شکار ہوئے. تو ایک بندہ مطلب سوچ کے
ऐसे ही होता है, डिप्रेशन शिकार ही हो जाता है। ओवरऑल तो मुझे ये सुसाइड ही लगता है, जो मेरा माइंड आपको नहीं लगता कि ये भी तो हो सकता है कि उन्हें किसी ने मारने की कोशिश की? वैसे तो ये वैसे कहा गया है कि जनरेटर उनके कमरे के अंदर ही कहीं लगा हुआ था पास ही, और उसके धुएं की वजह से उन्हें सांस नहीं आया और वो अपने कमरे में ही इंतकाल कर गए। और ये भी लेकिन उनके मुलाजम का भी एक तरफ बयान है कि वो कहते हैं कि जी आमिर लियाकत की रोने की आवाज़ें आ रही थी अपने कमरे में से। तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? कश्मकश में अभी जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन आपके ख्याल में क्या आप कहना चाहेंगे हमारी आवाम को? एज़ यू सेड, अभी हम अंदाज़ा ही लगा सकते कि कोई किसी को राज का पता नहीं, हकीकत का पता नहीं, तो ऐसे हम किसी पे मतलब नहीं कह सकते कैसे मरा है कैसे मरा। हर किसी की अपनी सोच है। अब जैसे मेरी सोच है कि उनको मेरे ख्याल से डिप्रेशन शिकार हो गए थे और इसी वजह से उनकी डेथ हुई है। आमिर लियाकत साहब जो इंतकाल कर गए, उनके अफसोस में कोई बात आप हमारे नाज़रीन को कहना चाहेंगे? यस, यही है कि अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मुकाम अता फरमाए। इट्स अ बिग लॉस फॉर पाकिस्तान, सो उनके लिए मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। सो दैट्स अ मैसेज फॉर एनीबडी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। बड़े खूबसूरत से उन्होंने मैसेज दिया कि जब मैंने इनसे कहा हर बंदे के दिन में अपने अच्छे ख्यालात भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अल्लाह पाक आमिर लियाकत साहब को जन्नतुल फिरदौस में जगह दें। और ज़ाहिर सी बात है, इंसान गलतियाँ भी करते हैं और गलतियों से ही सीखते हैं, लेकिन वो शर्मिंदा भी थे अपनी गलतियों पर और वो इंतकाल अब कर गए। लेकिन हमें किसी इंसान के बारे में बुरा नहीं कहना चाहिए जो जबकि वो हमारे बीच में मौजूद नहीं है। तो इसी तरह आगे भी बढ़ेंगे और जानेंगे सबकी राय। आ जाए मेरे साथ। तो ये बताएं कि आपको आज का जो टॉपिक है उसका पता लगा है, जो आजकल बड़ा ट्रेंडिंग जा रहा है। आज का मेरा मौजू भी वही है जिस मुतालिक मैंने आपसे सवाल पूछना है कि आमिर लियाकत साहब इंतकाल कर गए हैं और वो एक आलिम दीन थे, बहुत अच्छे शख्स भी थे, लेकिन देखें हर इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात आती है, लेकिन इंसान कुछ ऐसी मुश्किलात है जो अपने लिए खुद पैदा करता है। तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? देखें, जितनी अल्लाह पाक ने उनको इज़्ज़त दी थी, उनका एक मकाम था पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में, जहाँ भी उर्दू समझने वाले बोलने वाले उनको जानते थे, उनकी तारीफ़ करते थे। उनका बड़ा अच्छा एक रोल था हमारी सोसाइटी को बेहतर करने में। अब इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब उन्होंने पीटीआई ज्वाइन की है तो उनसे गलती ये होगी कि उनको ये नहीं पता था कि वो सिर्फ कराची के नहीं, पूरे पाकिस्तान के लोग जो है ना आमिर हुसैन को जानने वाले हैं। उनसे गलती ये होगी कि उन्होंने इमरान खान की मुखालफत शुरू की और जो आखिर में जो आखिरी 1-2 महीने उनके वो बहुत बुरे थे, जिसमें उन्होंने, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादती की। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, लेकिन उन्होंने ज़्यादती बहुत की इमरान खान के साथ। और बाकी ये जो उनकी पर्सनल लाइफ है कि उन्होंने शादियां की कितनी की, इसमें तो कोई इतराज़ नहीं बनता। उन्होंने निकाह किए हैं, तो अच्छी बात है। बाकी ये उनकी जो मौत है उसमें अब देखें कि उनके कमरे में धुआं जो ना वो साबित हुआ है, एक अज़ियतनाक मौत। हाँ, लेकिन अभी तक ये नहीं समझ आ रही कि वो धुआं जो है वो क्या हुआ, कैसे हुआ है। लगता है कि ये एक हादसाती मौत है जिसमें वो बेहोश हुए हैं। मेरा अंदाज़ा है कि वो बेहोश हुए हैं और उनकी डेथ हुई है। तो कोई इसमें खुदकशी नहीं लग रही, कोई किसी ने नहीं मारा, जो मेरा असेसमेंट है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप कहते हैं कि हादसाई मौत थी, तो क्या मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह का अजाब नहीं आया उन पे जो उन्होंने अपने घर की तमाम बातों को एक्सपोज कर दिया? ठीक है, शादी करना हक होता है हर मर्द को, इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने अपने घर की इज़्ज़त को और घर की इज़्ज़त ने उनको नीलाम किया, तो क्या आपको नहीं लगता ये गलत था? नहीं, नुकसान तो उनको बहुत हुआ है। ये उसका उनको भी पता कि मैं गलत कर बैठा हूँ, और उनकी इज़्ज़त का ग्राफ भी एकदम आसमान से ठा करके नीचे ज़मीन पे गिरा है, और एंड उनका अच्छा तो नहीं हुआ ना। इस एंड का सबको दुख है। ये हमारे लिए एक सबक है, एक अलमिया है, एक तरबिया है हमारे लिए कि इतनी बड़ी शख्सियत जिसको लोग चाहते थे, पूजते थे, लाखों लोग उनके जानने वाले थे, उनको चाहने वाले थे, तो उन सब का दिल टूटा है कि इनसे आखिर में जो 2-4 गलतियाँ हुई हैं वो नहीं होनी चाहिए थी। आमिर लियाकत जो हमारे आलिम दीन थे वो इंतकाल कर गए हैं आज, और दूसरी बात कि उनकी जिस तरह डेथ हुई है, क्या आपके ख्याल में वो एक सुसाइड अटेम्प्ट था या फिर एक तिब्बी उनकी हालत, कोई उनको डिप्रेशन था, कोई बीमारी थी जिसकी वजह से वो इंतकाल कर गया? आपका क्या कहना है इस मौजू के मुतालिक? नहीं, जहाँ तक सुसाइड का मामला है वो तो उनको काफ़ी देर पहले कर लेनी चाहिए थी अगर वो वाला मामला होता तो, ठीक है ना। वो तो ये है कि बस डिप्रेशन का शिकार तो होंगे ही। सेकेंडली वो जो डिसीज़ या जिस डिसीज़ में मुब्तला थे या जो वो इनहेल कर रहे थे उसकी वजह से रिएक्शन हो सकता है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि क्या उनके लिए ये मेरे ख्याल से जो उनका पीछे वाक़या हुआ है, उनकी बीवियां उनके आगे खड़ी हो गई और सब उनकी जो पर्सनल लाइफ थी, देखिए पर्सनल लाइफ तो पर्सनल लाइफ ही होती है, उसको अगर आप एक्सपोज करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपकी बदनामी हो जाती है। तो मैं तो यही सोच रही थी कि जो लास्ट उनकी दानिया शाह के साथ सारी जो भी उनका मामला चला है, और उनके लिए तो डूब मरने का मुकाम होगा। इस हवाले से आपका क्या कहना है कि शायद ये वजह थी उनकी मौत की, या उनकी कोई सुसाइड अटैम्प्ट की जो उनके साथ जिस तरह उनकी डेथ हुई है?
वैसे तो ये है कि मैं तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो उनको आलिम समझता ही नहीं है, ठीक है ना। और इसी तरह मुफ्ती अब्दुल कवी साहब, उनके साथ भी जो मुफ्ती वाला लफ्ज़ है वो एक कह लें कि एक उनकी बेहरमती है एक मुफ्ती लफ्ज़ की, ठीक है ना। जिस तरह के उनका जो रिएक्शन या जो वो मामला कर रहे हैं दुनिया में रह के, ठीक है ना, वो तो उनसे वो डिग्रियां वापस ले लेनी चाहिए, ठीक है ना। बाकी खैर हर एक का अपना अपना मामला हो सकता है, अल्लाह ताला को पता नहीं उनकी कौन सी अदा पसंद आए जिसकी उनकी वजह से उनकी आगे जाके अगले जहान में उनके लिए आसानियाँ पैदा हों। बहरहाल हम दुआ गो हैं अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमिर लियाकत साहब के इंतकाल जो वो कर गए हैं, इस हवाले से कोई अफसोस में आप कोई बात करना चाहेंगे, हमारे नाज़रीन को कोई मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, वैसे तो वो उन्होंने खुद भी कह दिया था कि मैं मुल्क छोड़ के जा रहा हूँ। डेफिनेटली इस बदनामी की वजह से करके वो किसी को फेस तो कर नहीं सकते थे। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने ये समझा कि यार इसको बजाय के बाहर जाने का ये दुनिया से पर्दा फरमा जाए, अल्लाह ताला की शायद इसमें कोई बेहतरी थी। बहरहाल कोई इसमें हिकमत होगी अल्लाह ताला की। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बड़ी खूबसूरत से उन्होंने मैसेज दिया कि वो ऑलरेडी इस बात को उन्होंने आवाम के सामने अपना एक बयान दिया था कि जी मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ। तो अल्लाह ने कहा, अल्लाह पाक ने ये सोचा होगा, बिल्कुल अल्लाह पाक अपने हर बंदे के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, उसके हक़ में बहुत बेहतर सोचते हैं। आपने आज की खबर तो देखी होगी कि आमिर लियाकत इंतकाल कर गए और जिस तरीके से उनकी डेथ हुई है, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? डेथ पहले तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बड़ा दुख हुआ है उनकी सुन के। अच्छे एंकर थे, लेकिन वो जैसा कि बाज़ार नज़र तो आ रहा है कि उन्होंने बस खुदकुशी वगैरह ही की है। वो पहले भी खबर सुन रहे थे कि वो कह रहा था मैंने कर लेनी है, उसका कोई उनकी अहलिया के साथ कोई रोला था, मसला था, उसकी वजह से बाज़ार तो यही नज़र आ रहा है कि उसने खुदकुशी की। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वैसे सुनने में तो ये भी आ रहा है कि उनकी एक सुसाइड ये अटैम्प्ट था। तो इस सुसाइड अटैम्प्ट की क्या वजह थी? कोई वो नशा करते थे, कोई मेडिसिन खाते थे? आखिर क्या वजह थी, क्या परेशानी उनको ऐसी थी? सब कुछ तो था अल्लाह का दिया उनके पास, एक ओहदा भी था, MNA भी थे और एक बहुत मशहूर आलिम दीन भी थे, हर बंदा उनको जानता है। तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? तीसरी वाइफ ही है उनका कोई मसला, उन्हीं के साथ उनका स्कैंडल चल रहा था। वो लहदा होने चाह रही थी, वो तो अलहदा हो गई थी ना, नानिया शाह की बात कर रही जी। तो फिर देखें ठीक है, गम में उसने किया जो किया बस। तो पहले भी तो बाकी दोनों बीवियों से तलाक हुई थी, उनके गम में नहीं की होगी? हो सकता है इसके साथ कोई ख़ास ही प्यार हो उसको। हमारे आलिम दीन आमिर लियाकत इंतकाल कर गए, इस हवाले से आपका क्या कहना है? आमिर लियाकत देखिए, मौत तो हक है, मौत तो आना ही आना है, इसमें तो कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए कि मतलब कि कोई इंतकाल कर गए। ज़ाहिर है इंतकाल होना ही है। और दूसरी बात यह है कि देखें, लोग कह रहे हैं कि कमरे में डेथ तो हो गई है, ठीक है, तो अब ये देखें इसके पोस्टमार्टम के बाद ही इसका हो सकता है सारा कुछ। लेकिन ये है कि अभी जैसे किसी की बददुआई भी तो लग सकती है ना, जैसे कि इनकी शादियाँ हुई थी तो एक डिवोर्स मांग रही थी, शायद उनकी बददुआई भी लग सकती हैं। तो उनके अपनी किरदार हैं, लोग कह सकते हैं। वो कह रहे कि नशा भी करते थे, तो ये मेरे ख्याल में जैसे कि वो कह रहे हैं, उनकी वाइफ ने कहा, तो ये उनको ज़ेब नहीं देता, क्योंकि एक आलम दिन है जो लोग एहतराम से देखते हैं उनको। तो अफसोस तो हुआ, ज़ाहिर है एक इंसान थे और इंतकाल कर गए, अच्छे इंसान हम कह सकते हैं। उनके अपने किरदार अपने हो सकते हैं, जो हमें बता देते वो हमें एक अच्छी बात कर देते हैं, तो हम उनको अच्छा कह सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कोई सुसाइड अटेम्प्ट था या फिर कोई नशा करते थे, कोई ऐसी चीज़ करते थे जिसकी वजह से वो इतने इरिटेट और डिप्रेशन में चले, कोई डोज उन्होंने ज़्यादा ले ली जिसकी वजह से उनके साथ ये हुआ? या फिर ये भी कहा जाता है कि उनके जब पुलिस उनके घर पे गई है, जब वो इंतकाल कर गए थे अपने घर में, अपने कमरे में ही, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जनरेटर का धुआं था और शायद उनका दम घुट गया। अभी तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आनी है, जो सीधी सी बात है, लेकिन मैं आपका पूछना चाहूँगी कि आपका इस हवाले से क्या नज़रिया है? जी देखिए, मैं जिस इलाके में रहता हूँ कराची में, मैं भी कराची का रहने वाला हूँ, लेकिन वहाँ जो ईरोन पीते हैं ना, ईरोन, अगर खुदा ना खास्ता, मैं कह नहीं सकता कन्फर्म, अगर ईरोन कोई पीने वाला बंदा हो तो वो जब वो ईरोन पीते हैं ना, तो उसका दम घुट सकता है, कन्फर्म घुट सकता है, क्योंकि ये हो सकता है कि उनका इंतकाल उससे भी हो सके। तो हमारी आवाम को आप उनकी डेथ के अफसोस में कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, कोई भी इंसान एक अच्छे अखलाक होते हुए और कोई अच्छी बातें करते हुए, तो अगर एक अच्छी तबलीग देते हुए, तो हम उनको एक अच्छा इंसान कह सकते हैं। अल्लाह उनको मग़फ़िरत नसीब करे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बड़े खूबसूरत से उन्होंने मैसेज दिया कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करें। मुझे ये बताएं कि आपने आज का जो मौजू देखा होगा, जो हम जिस मौजू पे आपसे बात करना चाह रहे हैं कि आमिर लियाकत साहब जो हैं वो इस दुनिया से वफ़ात पा गए, इंतकाल हो गया उनका सुबह, और जिस तरीके से हुआ, तो उस हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे कि वो सुसाइड अटैम्प्ट था या फिर एक हादसाई मौत थी या कोई बीमारी थी, कोई डिप्रेशन था? क्या आपकी राय है इस हवाले से कि किस तरह उनकी डेथ हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप? आमिर लियाकत साहब काफ़ी देर से हम उसका वो देख रहे हैं, इंटरव्यू काफ़ी देर से चल रहा है। मैं उनका ज़हन तो आदम ठीक नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि चौथी शादी हुई, 4 शादी उनकी हो गई, इसकी वजह से मौत हुई उनकी।
क्या कह रहे हैं? इसकी वजह से उनकी मौत हुई होगी। अच्छा, मतलब 4 शादियां हुई हैं तो 4 शादियों करने वाला बंदा मर जाता है? नहीं, वो ज़हन उसका काम कर रहा था, कभी कोई बात कर रहा है, कभी कोई बात। इंटरव्यू से काफ़ी देख रहे थे, काफ़ी देर वो से। तो नशा भी करते थे कि नहीं? नशा का पता नहीं फिलहाल। अच्छा, तो कोई डिप्रेशन भी, मैंने सुना है कि उन्हें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था, प्रेशर था, और वो जिस टाइम उनकी डेथ भी हुई है वो अपने कमरे में अकेले बैठे हुए थे। उनके मुलाजिम का ये बयान है कि वो रो रहे थे और 2 दिन से वो रो रहे थे। इस हवाले से आपका क्या कहना है? वो तो बीमार काफ़ी देर से। बीमार काफ़ी देर से हाँ। थे। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आप इतने चुप चुप क्यों हैं, परेशान हैं उनकी डेथ से? नहीं, परेशानी क्यों होना है? आमिर लियाकत के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, बस इतना ही करते। अच्छा, तो उनकी इंतकाल के अफसोस में कोई बात नाजरीन को कहना चाहेंगे? नाज़रीन को क्या कहना, नाज़रीन बस दुआ ही कर सकती है कि अल्लाह उसको हिदायत दे। अल्लाह उसको हिदायत दे। वो तो अब हमारे बीच में मौजूद नहीं है। मेरे कहने का मकसद है, आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? अल्लाह का हुक्म है उसका, बस ठीक है, ओके। अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह का हुक्म। कोई नाजरीन को बात करना चाहेंगे जो उनके बारे में बुरा भला बोल रहे हैं? देखिए, अब एक बंदा जिंदा नहीं है, उसके बारे में बुरा भला बोलना बनता तो नहीं है, पूरा बनता तो कोई नहीं। हाँ, तो फिर नाजरीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बस दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह का हुक्म है। अच्छा, मतलब ये चुप चुप करके सब बातें कर रहे हैं, तो बड़े इन्होंने प्यारे मैसेज दिए नाज़रीन। आमिर लियाकत अब हमारे बीच में नहीं रहे, और उनकी जिस तरह इंतकाल वो किया हुआ है उनका, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आज मैंने सुना है आमिर लियाकत हुसैन की डेथ हो गई है, लेकिन मेरा ख्याल है उन्होंने 2-3 शादियाँ भी की हुई थी। लास्ट टाइम उनकी जो लास्ट टाइम शादी की थी वो हानिया शाह, उसने भी कुछ खदशात का इज़हार किया था कि वो आइस करते हैं और मारते पीटते भी हैं, और शायद उसी डिप्रेशन की वजह से, और उन्होंने खुला के लिए भी कहा था कि मुझे घर चाहिए और इतने गाड़ी चाहिए और ये चाहिए। शायद इस वजह से उन्होंने डिप्रेशन में आके कुछ सुसाइड वगैरह या कोई, या देखें हादसाती मौत हो सकती है या फिर सुसाइड वगैरह कर। अच्छा, जो नाज़रीन उनके बारे में बुरा भला बोलते हैं, क्योंकि देखें एक बंदा मर गया, एक बंदा हमारे दरमियान नहीं रहा, वो इंतकाल उनका हो गया, तो वो हमारे बीच में नहीं रहे, तो क्या हमें इंसानियत के नाते क्या ऐसा सब कुछ बोलना चाहिए इंसान के पीछे? क्या उसकी बेहतरी के लिए दुआ नहीं करनी चाहिए? हमारे नाज़रीन को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? जी, वो आपकी बात सही है। जब इंसान इस दुनिया से चला जाए, फिर उसकी अगर कोई गलतियाँ भी हो तो उन पर पर्दा डाल देना चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब उनको बुरा भला कहना चाहिए। हर इंसान से गलतियाँ भी होती हैं, अच्छाइयाँ भी होती हैं, खूबियाँ भी होती हैं, खामियाँ भी होती हैं। उन्होंने बहुत अरूज पकड़ा था, वो जो रमज़ान ट्रांसमिशन में वो करते थे प्रोग्राम, लेकिन ये उन्होंने पहले MQM को ज्वाइन किया, फिर उसके बाद PTI को ज्वाइन किया, फिर इनको कुछ गलतियाँ भी हैं, लेकिन हर इंसान से गलती भी हो जाती है और अच्छे काम। अच्छा, आमिर लियाकत की जो डेथ हुई है उस हवाले से आप कोई हमारी नाज़रीन को मैसेज देना चाहेंगे? बस मैसेज क्या यही है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके सब्र जमील, उनके अहले खानों को सब्र जमील अता फरमाए। और मेरा ख्याल है कि उनकी जो फ़र्स्ट वाइफ थी वो बहुत अच्छी औरत थी, और मेरा ख्याल शायद सेकंड वाइफ और थर्ड वाइफ तो उनका कुछ है नहीं, लेकिन वो फर्स्ट वाइफ उनकी बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बड़े खूबसूरत से उन्होंने मैसेज दिया कि एक इंसान हमारे दरमियान नहीं है तो अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। उनके वो इंतकाल उनका हो गया, लेकिन उनकी जो फ़र्स्ट वाइफ थी वो बहुत अच्छी थी, दूसरी तीसरी का नहीं हमें पता, लेकिन उनकी फ़र्स्ट वाइफ के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे और वो इनकी नज़र में बहुत अच्छी है। नाज़रीन जी, नाज़रीन जैसे कि आज हम लिबर्टी मार्केट में मौजूद थे, सबसे गुफ्तगू की, सब नाज़रीन से उनकी राय ली। रोज़ हम मुख्तलिफ एक मौजू लेके आते हैं, सबसे उस हवाले से गुफ्तगू करते हैं और सब हमारे साथ गुफ्तगू करते हैं, अपनी राय शेयर करते हैं, अपने थॉट्स शेयर करते हैं। तो नाज़रीन, कल भी हिल्टन और आपकी जानिब से आपकी होस्ट और दोस्त मलाइका भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर होगी एक नए मौजू के साथ। फिल वक्त आपसे जाऊंगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।